Good afternoon, students. Today we are going to start with the new situation of a problem on account final company accounts, that is the issue of shares that we have discussed previously. Many situations still remaining. Some of the situations. That's why I'm telling you the new type of situation in this particular session that we are going to discuss. Uh, I'm showing you a PPT in which you can see the new problem, new situation when the shares are issued at a premium. So see that Shraddha Limited issued 1 lakh equity shares of rupees 10 each at a premium of 2 per share, payable as follows. How it is paid: 3 rupees on application, 5 rupees on allotment. As I told you, the application money does not include generally premium amount. कभी included नहीं होता यहाँ पे. वो जो है वो that amount will be received as a face value part. देन अलॉटमेंट के साथ में अगर प्रीमियम होगा तो वहां पे प्रीमियम का अलग एंट्री करना पड़ेगा. दैट वी विल सी. 4 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. अगर आप इसका टोटल करोगे तो 2 रुपए ऐड करके 10 रुपीज में 12 रुपीज इतना फेस वैल्यू आपको मिलेगा. सी दैट 3 + 5 दैट इज 8 + 4 12 rupees. Applications were received for the 1,20,000 equity shares. As I told you, you will consider how much amount of money is received for this entry of application received. तो वहां पे आप जब बैंक अकाउंट का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे, that time you will consider 1,20,000 into 3, this much amount of in the transaction. So how it is applications और accepted, कितना acceptance किया, क्या किया, इसके बारे में आगे प्रोसीजर बताया. On pro rata, and pro rata allotment was made to all the applicants. सब applicants को हमने shares allot किया, but on which basis? On pro rata basis. That means in a what we can say, in a ratio form. रेशो को कंसिडर करके हमने ये सब एप्लीकेंट्स को ये पैसे सारे एप्लीकेंट्स को ये सारे एप्लीकेशन या अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स किया है. द एक्सेस ऑफ एप्लीकेशंस मनी वाज एडजस्टेड विद अलॉटमेंट. जहाँ पे ज्यादा अमाउंट मिला है 1,20,000 शेयर्स, 1 लाख शेयर्स के लिए 1,20,000 का एक्सेस इक्विटी शेयर्स 20,000 एक्सेस जो आप एप्लीकेशन मनी 20,000 into 3 दैट इज 60,000 जो एक्सेस मनी मिला है वो एडजस्ट किया हमने. उस एडजस्टमेंट को हमने कहाँ पे दिखाया? दैट इज ऑन अलॉटमेंट. So that will be adjusted in allotment. We will not demand from that peoples for the allotment money in a full manner. जितना कम जितना 5 rupees में से कम हो उतना हम उनसे ले लेंगे. That we will demand it in the allotment, and we will also inform them that your money which is on application of that particular number of shares adjusted with the with what the allotment of your shares, that will be informed. विनीता who was allotted 200 shares. ये विनीता जो थी उसमें से एक केस जो शेयर होल्डर होने वाली थी, failed to pay first and final call. जिसने क्या किया, जो थर्ड कॉल था, that is after allotment, not third call we can say, third installment we can say, that is that she refused to pay. हमने उसे इन्फॉर्म किया, 14 days नोटिस भेजा, सेक्रेटरी ने इंफॉर्मेशन किया, कांटेक्ट किया, बट शी हैवंट पेड, सो हर शेयर्स वर फोरफिटेड. तो उसके शेयर्स जो है वो फोरफिट किए गए, जब्त कर लिए 200 शेयर्स. दैट मीन्स शी हैड पेड अलॉटमेंट मनी एंड एप्लीकेशन मनी, दैट इज 8 rupees पर शेयर. दैट मच शेयर्स वर फोरफिटेड. ये क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, ये आपको बाद में जर्नल एंट्रीज में बता दूंगा. सो उसने पेमेंट कितना नहीं किया? 4 into 200 दैट इज 4 2 800 rupees that she haven't paid, and she had paid 8 into 2 that is 8 2 1600 she had paid. Okay, pass journal entries in the books of Shraddha Limited and show the balance sheet.
दोनों चीजें हम आज के सेशन में देखने वाले, बैलेंस शीट भी। पहला एंट्री जो है दैट इज फॉर ₹3 एप्लीकेशन मनी। सो 1 लाख नहीं कंसिडर करना है, जितना हमारा इशू था वो नहीं कंसिडर करना है, जितना हमारा एप्लीकेशंस मिले हैं, जितने एप्लीकेशंस हमें मिले थे, रिसीव हुए थे, वो हम कंसिडर करेंगे। दैट इज 1,20,000। सो 1,20,000 into 3, that is a 12 3s are 36, and 3,64,000 as it is. So we got the amount 3,60,000. So what is entry exactly? Bank account debit to share application, equity share application account 3,60,000. That entry you know about. That's why I have taken just picture of it and not showing on board. It will waste more time, and explanation remains. So I have given just a screenshot of it. So you will understand immediately. Being application money on 1,20,000 equity shares at ₹3 per share received. So it is a simple first journal entry. Second entry is very important. जितना शेयर हमने इशू किया था, डिसाइड किया था, एज पर द प्रोस्पेक्टस इट इज ओनली 1 लाख इक्विटी शेयर्स। तो जो एक्सेस है, जो 20,000 एक्सेस जो है, उसको हमें एडजस्ट करना है, कहीं पे तो एडजस्ट करना है, दैट इज एडजस्टेड अगेंस्ट द अलॉटमेंट, बिकॉज वी आर मेकिंग प्रो राटा अलॉटमेंट। तो अगला जो इंस्टॉलमेंट है वो प्रो राटा अलॉटमेंट के लिए था, सॉरी अलॉटमेंट के लिए था, अलॉटमेंट मनी के लिए, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के लिए, सो दैट इट इज क्रेडिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो हमारा जो एप्लीकेशन का क्रेडिट जो है 3,60,000, वो उतना ही डेबिट यहाँ पे दिया है, देखो आप। तो यहाँ पे एप्लीकेशन अकाउंट क्लोज हो जाएगा। पहली तो बात, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो है उसे पूरी तरह 3,60,000 का डेबिट दे दो, सो इट विल बी नील। Then credit must be given to that amount, that much amount only, which we have decided for the issue. So 1 lakh shares are there, application money 3, so 1 lakh into 3, that is 3 lakh must be credit of share capital. What is allotment transfer? कैसे किया allotment का क्रेडिट एडजस्ट? तो वो मैंने अभी आपको बताया था कि उसका जो अमाउंट है 20,000 शेयर्स जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मिला है, जो एप्लीकेशंस एक्स्ट्रा मिले थे 20,000, दैट इनटू 3, दैट we will record as a equity share allotment account. Just 1 second, I want to see. Okay, it is recorded. My voice is clear. Yes. See that allotment. तो हमने ये allotment में 60,000 क्रेडिट कर दिया। Being application money on 1 lakh shares and transfer to share capital account, remaining money adjusted with against the allotment. Then third entry is regarding to allotment. Allotment यहाँ से अभी start होता है। Allotment money ₹5 है, ₹5 into 1 lakh, that is 5 lakh. तो अलॉटमेंट का डेबिट होना चाहिए 5 लाख का। यस, इट इज देयर। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 5 लाख। क्रेडिट किसे दे? तो क्रेडिट दो चीजों को देना है, दैट इज शेयर कैपिटल अकाउंट, जैसे हम यूजुअली करते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को 3 लाख रुपीज का दिया है। क्यों 3 लाख रुपीज का दिया है? बिकॉज आंसर इज हियर। श्रद्धा लिमिटेड इश्यूड 1 lakh equity shares at rupees 10 each at a premium of ₹2 per share payable. तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो पूरी तरह से नहीं दी है इस प्रॉब्लम में। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट मस्ट इन्फॉर्म अलोंग विथ विच कॉल, वेदर विथ अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, किस कॉल के साथ में हमने प्रीमियम कलेक्ट किया है। तो यहाँ पे ब्रैकेट होना चाहिए था ₹2 फॉर प्रीमियम कलेक्टेड। तो यहाँ पे प्रीमियम ₹2 यहाँ पे लिखना, यहाँ पे ब्रैकेट होना जरूरी था। देयर आर मिस्टेक्स इन द टेक्स्ट बुक, सो कंसिडर दैट। तो ये जो ₹2 है, ₹5 में इन्वॉल्व है प्रीमियम के। ये जो ₹2 प्रीमियम है हमारा, दैट इज इन्वॉल्व इन ₹5।
So we will multiply 2 rupees multiplied by 1 lakh, that is a 2 lakh, that is a share premium account must be created. क्यों ऐसे किया? क्योंकि मैं आपको यूजुअली बताते रहता हूँ कि इक्विटी शेयर कैपिटल का जो क्रेडिट होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल को जो हम क्रेडिट देते हैं वो फेस वैल्यू से देते हैं। वहां पे कहीं पे भी हमें हमें प्रीमियम को कंसिडर नहीं करना है, प्रीमियम अमाउंट रिसीव्ड को हमें उस शेयर कैपिटल अकाउंट में इन्वॉल्व नहीं करना है। उसके लिए सेपरेट अकाउंट ओपन करना पड़ता है, इक्विटी शेयर प्रीमियम अकाउंट, that is a share premium account or equity share premium account that must be recorded. तो यहाँ पे वो क्रेडिट हमने अलग रिकॉर्ड किया है, that is credited to share premium account 2 lakh rupees. Next, how much amount that we are going to collect? पूरा अमाउंट हम कलेक्ट करने वाले 3 along that 2 rupees, that is a 5 rupees per share and on 1 lakh. So bank account debit to equity share allotment account. Now what happened here कि जो अलॉटमेंट मनी हम कलेक्ट करने वाले थे 5 लाख रुपीज का ड्यू जो हमने दिखाया अभी 5 लाख अलॉटमेंट का, उसमें से 60,000 ऑलरेडी वी हैड कलेक्टेड इन द applications, that we had shown that people's money as an allotment money. We have informed them that your this 60,000, that amount of excess applications for the shares, we are not accepting the this much share we are accepting, and उसका जो ज्यादा पैसा आपका अलॉटमेंट का नेक्स्ट कॉल में आपको देना था, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में आपको देना था, वो हम अभी आज एडजस्ट करने वाले हैं. दैट्स व्हाई इट इज अलॉटमेंट ऑलरेडी 60,000 विद 60,000 क्रेडिटेड. सो यहाँ पे वो 60,000 फिर से हमें कलेक्ट नहीं करना है. तो बैंक अकाउंट डेबिट 4,40,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 4,40,000. तो टोटल अलॉटमेंट का क्रेडिट 60 प्लस 440 दैट इज 5 लाख हो चुका है और डेबिट भी 5 लाख हो चुका है. मतलब यहाँ पे अलॉटमेंट अकाउंट क्लोज करने के लिए यहाँ पे 4,40,000 ही चाहिए थे. ये आपको समझना चाहिए. ये सारे हिसाब किताब डेबिट क्रेडिट पे है, तो आपको ये समझना चाहिए. इसका सीक्वेंस क्या है वो भी आपको समझ लेना चाहिए. ओके, इंफॉर्मेशन यहाँ पे लगेंगे, पर आप ये चीजें समझ लो कहाँ पे क्या एडजस्ट किया है, प्रीमियम कहाँ कलेक्ट किया है, दैट यू नीड टू नो and record accordingly. Being share allotment money received after adjusting excess application money received. Okay, अगला जो है दैट इज अ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, दैट इज फॉर 4 रुपीज 4 into 1 lakh, दैट इज 4 लाख. ठीक है, तो ड्यू दिखा देते हैं. इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 4 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 4 लाख. दैट इज अ सिंपल एंट्री. अगर ड्यू दिखा दिया है तो आगे क्या होगा? आगे एक प्रॉब्लम है, दैट इज विनीता हु वाज अलॉटेड रिफ्यूज टू पे फॉर 200 शेयर्स दिस कॉल. तो 200 into 4 that is 800 she haven't paid. तो ये कॉल सिनेरियोस होंगे, वो पैसा नहीं मिलेगा. 800 हम डिडक्ट कर लेंगे 4 लाख में से. ये जो 4 लाख है उसमें से 800 डिडक्ट कर लेंगे, तो बचेगा अमाउंट कितना? 3,99,200. तो व्हाट इज कलेक्टेड अमाउंट, रिसीव्ड अमाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 3,99,200. 3,99,200. What is narration? Being share first and final call on 99,800 shares at rupees 4 per share received. Okay, that is narration. And lastly, final entry जो आपका है, जो कैपिटल्स का एंट्री जो है वो हमें यहाँ पे एडजस्ट करना है. 2,000 का जो टोटल वैल्यू जो है फॉर फ्यूचर का जो प्रोसीजर है वो यहाँ पे हमें फिनिश करना है लास्ट एंट्री में. हर सिचुएशन की दो एंट्रीज फिक्स होती है, एप्लीकेशन की, अलॉटमेंट की, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, लाइक दैट. हियर इट इज 7th एंट्री दैट नीड टू बी मेड, दैट जो इक्विटी शेयर कैपिटल 200 शेयर्स के लिए था उसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज से होती है 2,000 रुपीज. प्रीमियम वहां पे कंसिडर नहीं करना है, प्रीमियम वहां पे कंसिडर नहीं करना है, फेस वैल्यू कंसिडर करना है. जैसे मैं बार बार बताता हूँ आपको, while recording capital account, share capital account, you must only debit or credit with the face value.
पार्ट ऑफ फेस वैल्यू और फेस वैल्यू, दैट इज 10 रुपीज का जो भी पार्ट होगा, रिसीव्ड होगा, रिसीवेबल होगा, दैट यू विल रिकॉर्ड। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2000 क्यों लिखा गया है? क्योंकि उस विनीता के जो शेयर्स वॉल्यूम था 200 क्वांटिटी था, मल्टीप्लाइड बाय 10, दैट इज 2000। Out of that, she haven't paid 800 rupees. So equity share first and final call को जो 800 का कम क्रेडिट था वो दे दिया हमने 800 यहाँ पे। तो वो जो अकाउंट 800 का बैलेंस दिखा रहा होगा वो अभी नहीं दिखाएगा। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 800 का क्रेडिट। तो इसमें से 2000 में से 800 का क्रेडिट हो गया तो 1200 का क्रेडिट किसे दे? So that is equity share forfeiture account, which is a forfeiture entry that we will come to know. So to share forfeiture account 1200. तो एंट्री क्या होगा? Being forfeiture of 200 equity shares due to non-payment on of first and final call recorded, that we will write here. सो शेयर फॉरफीचर अकाउंट मतलब फॉरफिट किया हुआ पार्ट कितना है, जब्त किया हुआ पार्ट कितना है, अमाउंट कितना है, दैट इज 1200। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि आपकी जो वैल्यू जो है शेयर्स की, कलेक्टेड अमाउंट जो है विनीता से 3 + 5 दैट इज 8 रुपीज, और नॉट कलेक्टेड जो अमाउंट है वो 4 रुपीज है। ओके, सो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को दे दिया हमने ये 4 रुपीज का क्रेडिट, और ये जो 8 रुपीज का क्रेडिट है, 8 to the no, that is a forming part of face value, that is a 3, and from this only 3 rupees, that is 6 rupees, 6 into 200 that is a 1200, that is created। जैसे मैंने आपको बताया कि पार्ट फॉर्मिंग द फेस वैल्यू, तो 2000 यहाँ पे जस्टिफाई होते, 800 का क्रेडिट फॉर शेयर फाइनल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, एंड फॉर फ्यूचर का 1200। यहाँ पे प्रीमियम का अमाउंट हमें कंसिडर नहीं करना है, दैट इज एक्सक्लूडेड। तो फॉर फ्यूचर में ये आपको ध्यान में रखना होगा, फॉर फ्यूचर अकाउंट को क्रेडिट डालते वक्त जो 200 shares multiplied by that 2 rupees of premium that we will exclude, हमें उसे कंसिडर नहीं करना है। फाइनली बैलेंस शीट जो मैं बार बार बता रहा था कि बैलेंस शीट आपको लिखना है एग्जाम में, अगर पूछा तो 2 मार्क्स के लिए, दैट मे बी माइट बी टेकिंग वेटेज इन द प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम शॉर्ट होगा तो बैलेंस शीट पूछा जाएगा, कम एंट्रीज होगी, लाइक दिस प्रॉब्लम 7 एंट्रीज आर देयर, सो इट माइट बी देयर 3 मार्क्स के लिए आपको ये बैलेंस शीट आ जाए। बैलेंस शीट वैसे भी आपको समझना चाहिए, आना चाहिए। शेयर कैपिटल 9,98,000, शेयर प्रीमियम अलॉटमेंट 2 लाख, एंड फॉर फ्यूचर अलॉटमेंट 1200। बैंक अकाउंट में इतना कलेक्शन है। अभी बैंक अकाउंट का बैलेंस आप वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, बैंक में कितना कितना पैसा किस किस कॉल के लिए कलेक्ट हुआ है वो यहाँ पे दिखाई देगा। शेयर कैपिटल में 2000 का शेयर, दैट इज 200 शेयर्स, दैट मल्टीप्लाइड बाय 10, वो हमने कम कर दिया, तो शेयर कैपिटल में कितना बचेगा? 10 लाख में से 2000 कम हो गए, 9,98,000। शेयर प्रीमियम अलॉटमेंट में दैट इज 2 lakh rupees shown। Why it is shown? Because rupees 2 into 1 lakh shares, that's why 2 lakh। And finally you will find the total 11,99,200 in the both columns। That is the explanation of today। Thank you for listening this lecture। It's very important to know the new situation of premium, remaining problems that we will continue in the next session। Thank you for listening this lecture।